The topic is force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Till now, in the last class, we were studying about magnetic field. उसका magnitude हम लोग निकालते थे, B का magnitude और B का direction. But now onwards, we are going to study force acting on a current carrying conductor when it is placed in a external magnetic field. अब यहाँ पर statement क्या है? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. When it is placed parallel to the magnetic field. यहाँ parallel word use किए हैं, उसको हम समझाएंगे बाद में, पहले ये समझ लो. We have already studied in the beginning that when a current is passed through a conductor, what is produced around it? Tell me, what is produced around it? Magnetic field lines. Yes, magnetic field lines is produced around it, and when that current carrying conductor is again placed in another magnetic field, जिसको हम external magnetic field बोलते हैं, then that conductor experiences a force. And when that conductor will experience force, it will deflect from its position. वो अपने position से move कर जाएगा. Now, what is the reason behind that force? वो हम reason भी दिखा रहे हैं. The reason is, it is due to the interaction between magnetic field due to a current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed. यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है. एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो दीज टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. और ये फोर्स किधर लगेगा वो भी हम बता रहे हैं. The conductor will experience the resultant force in the direction of the weaker magnetic field. जिधर weak magnetic field होगा, कंडक्टर उधर जाके डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उधर अपना पोजीशन को चेंज कर लेगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इंटरैक्शन. मैग्नेटिक फील्ड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरैक्शन होगा, और उस इंटरैक्शन में कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स किधर लगेगा? In the direction of the weaker magnetic field. This is the reason behind the force which is experienced by a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. Now, to prove this, there is one activity which is given in your NCERT book. I am showing that activity in a slide. This is the activity. इसको कहते हैं kicking wire experiment. अब इसमें first of all I will tell you this experimental setup. First of all I am going to tell you this experimental setup. AB is a conductor. यहाँ जो दिख रहा है कर्सर को देखना है. AB is a conductor. ठीक है. And this conductor is placed inside the external magnetic field. ये है तुम्हारा external magnetic field जिसको रेड कलर का दिया हुआ है horseshoe magnet. ऊपर में है साउथ पोल और नीचे में है नॉर्थ पोल. एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड जस्ट बिटवीन द पोल्स. न काफी अंदर है न काफी बाहर है, ठीक पोल्स के नीचे होना चाहिए. ठीक है. एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड, ये ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर to the direction of the magnetic field. ये ज्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है. परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए. क्यों पैरेलल नहीं होना चाहिए वो भी बतलाएंगे. अभी पहले ये देख लो. This conductor should be placed perpendicular to the direction of the magnetic field. तो magnetic field originate कहाँ से करेगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नीचे से ऊपर. ठीक है. And this conductor should be placed perpendicular to the direction of the magnetic field. Now these two ends of the conductor is connected to the battery. ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है. दिस इज
closed plug key and see the direction of the current. This is the direction of the current. जैसे हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, एरो दिखा रहे हैं, and then the current flows from B to A. B से A current flow कर रहा है, and then again the current moves in this direction, and then again it returns back, which is connected to the negative terminal. तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड आ गया. One magnetic field is in a current carrying conductor AB, and another magnetic field is produced by this external magnetic field, that is horseshoe magnet. अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, and now there will be interaction between these two magnetic field. Now this conductor will experience force. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या सर सिर्फ कंडक्टर ही एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, मैग्नेट एक्सपीरियंस नहीं करेगा? यस, मैग्नेट विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडक्टर ही एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेट विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स. बट सिंस दिस मैग्नेट इज हैवी in comparison to this conductor which is hanged, इसलिए मैग्नेट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका कोई ऐसा डिफ्लेक्शन नहीं होगा. And this conductor is very light. It is freely suspended in the atmosphere between the two poles of a horseshoe magnet. इसलिए हल्का होने के कारण इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन आएगा. नाउ अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो देखो. When the key K is closed, current flows through the conductor AB and is deflected from its position. तो करंट का डायरेक्शन होगा B to A. ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ एरो दिखाया गया है, B to A is deflected from its position in this figure towards the direction of the blue arrow inward. अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो देखो किधर फोर्स लगेगा, ये ब्लू एरो दिया हुआ है ए के सामने, यानी कि ये फोर्स तुम्हारा अंदर की ओर लग रहा है. क्यों अंदर की ओर लग रहा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं. When the key K is closed, current flows through the conductor AB in the direction B to A and is deflected from its position. और ये डिफ्लेक्शन किधर होगा? In the figure it is given the direction of the deflection will be inward the horseshoe magnet, अंदर की ओर, यानी towards the direction of the blue arrow. ये तो पहला ऑब्जर्वेशन मिला. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा इसमें कि on reversing the direction of the current, यानी कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव कर दें और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव कर दें, on reversing the direction of the battery or the terminals of the battery, the current will flow in opposite direction. तब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा कि क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन A to B हो जाएगा, and the deflection in the conductor will be reversed. और जो डिफ्लेक्शन अंदर की ओर हो रहा था inside the horseshoe magnet, now this deflection will be reversed. अब ये बाहर की ओर जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन तो हमने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि ये आउटवर्ड जाएगा, पहले था इनवर्ड अब जाएगा आउटवर्ड, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तीसरा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या देखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज आल्सो रिवर्स्ड if the direction of the magnetic field is also reversed, that is by interchanging the position of the north and south pole. यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम नॉर्थ पोल को ऊपर कर दें और साउथ पोल को नीचे कर दें, मैग्नेट को पलट दें, then also what will happen, the force which is acting on the current carrying conductor will be also reversed. यानी कि पहले क्या था, पहले अंदर की ओर जा रहा था और करंट का डायरेक्शन को हम सेम रखते हैं, यानी फ्रॉम बी टू ए. ठीक है, और अगर हम पोल्स को रिवर्स कर देते हैं then the deflection will be outward. तो from this conclusion, from this experiment, इसमें दो कंक्लूजन निकल के आया. हम दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. टू मेथड्स. पहला मेथड है बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और दूसरा मेथड है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
यानी कि हम पोल्स को इंटरचेंज करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, इन केस द कंडक्टर AB इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। अब इस पर फोर्स नहीं लगेगा अगर ये पैरेलल। रेज्ड हैंड आदित्य राज, यस, क्या क्वेश्चन है आदित्य? Aditya Raj, what is your question? You have raised your hand. Sir, one boy with my name has. Okay. In case the conductor AB is placed parallel to the magnetic field, it experiences no force and there will be no deflection. अगर इस कंडक्टर को पैरेलली रखा जाए, पैरेलली का मतलब क्या हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट, यानी कि अगर नॉर्थ टू साउथ फील्ड जा रहा है और कंडक्टर को भी उसी डायरेक्शन में रख दे, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कंडक्टर इस दोनों के बीच होना चाहिए, पैरेलल, इसके अंदर ही होना चाहिए, ना कि मैग्नेट से बाहर निकल जाना चाहिए। मैग्नेट के बाहर पैरेलल नहीं रखना है, इसके अंदर, इस दोनों पोल्स के अंदर, देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। ये क्यों फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन है। एनी क्वेश्चन दिस स्लाइड? कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है? सर आप बोले थे कि डिफ्लेक्शन जिधर वीक होगा उधर ना जाएगा। हाँ हाँ, यस यस। तो सर, तो ये हॉर्सू मैग्नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक है? नहीं नहीं, वीक होने का मतलब क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है ना आपस में, टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट, और जब इंटरेक्ट करेगा तो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा, कहीं वीक होगा। तो जिधर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। हम ये नहीं करें कि नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ जाएगा, इट विल डिफ्लेक्ट आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर की ओर या बाहर की ओर, ठीक है। तो अंदर की ओर जा रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है अंदर की ओर, बाहर की ओर जा रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है बाहर की ओर। तो वो इंटरेक्शन हो रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो इंटरेक्शन के बीच में वेरेवर देयर विल बी वीक मैग्नेटिक फील्ड, जहां भी वीक होगा उसी और डिफ्लेक्शन होगा, उसी और कंडक्टर मूव करेगा। ये कहने का मतलब है। ये कहने का मतलब नहीं है कि हॉर्सो का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, नहीं, उसको तो हम बढ़ा भी सकते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को रख देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड स्लाइड। अब देखो तुम्हारा थर्ड स्लाइड में क्या है। अब थर्ड स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है, एबी पर जो फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये किस पर डिपेंड करता है? The force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field is in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field, is directly proportional to the current flowing through the conductor. यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला फैक्टर है तुम्हारा करंट आई। सेकंड फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो करंट को हम कैसे बढ़ाएंगे? बाय, यस आदित्य गौतम बोलो। Sir, someone has written my name and in the bracket it is written host also. अच्छा ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी कि अगर इस तीनों फैक्टर को हम अगर बढ़ाते हैं, बी को, आई को और एल को, then the force experienced by a current carrying conductor will also increase. तो ये सिंपल फॉर्मूला है, F is equal to BIL, बिल, ठीक है। If
तो बी को हम कैसे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बढ़ाएंगे, ये जो बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, ये बी बढ़ेगा बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। आई कैसे बढ़ेगा, आई बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ cells and length L is the length of the conductor. So the formula becomes BIL. इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस तुमको फॉर्मूला जानना है और फैक्टर्स क्या क्या, यही जो फॉर्मूला है वही तुम्हारा फैक्टर हो गया। अब इसी से तुम निकाल सकते हो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B का फॉर्मूला हो जाएगा F by IL। F इज का फॉर्मूला लिखेंगे न्यूटन, I हो गया तुम्हारा एम्पियर, L हो गया तुम्हारा लेंथ, लेंथ का हो गया मीटर, यानी कि 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और उसी को बोलते हैं 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इसका यूनिट हम इससे भी निकाल सकते हैं, आइदर राइट टेस्ला और यू कैन राइट 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये भी है तुम्हारा ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों फैक्टर समझ में आ गया। एक्चुअली तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड 10 के लेवल का है, इसमें एक और फैक्टर भी है। फैक्टर एक और क्या है, थीटा एंगल। अभी हम बता रहे थे पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर थीटा एंगल है। एक्चुअली द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है दैट यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 12 sin थीटा। तो अगर पैरेलल हो गया तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ तुम लोग। अगर कंडक्टर को पैरेलल रखिए, अगर कंडक्टर को पैरेलल रखिए इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर जीरो। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यस, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू BIL 0, F तुम्हारा क्या हो गया 0। तो व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स उस पर काम करेगा 0। और अगर हम परपेंडिकुलर रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो थीटा हो जाएगा 90, और जब 90 हो जाएगा तो वैल्यू विल बी 1, एंड 1 इंटू BIL क्या हो जाएगा 1, यानी कि उस केस में फोर्स जो लगेगा तुम्हारा मैक्सिमम। तो मिनिमम होगा 0 के केस में और मैक्सिमम होगा 90 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर। इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए हम बता दिए। एक फैक्टर और भी है थीटा एंगल। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा। Okay, now come to the next. Yes, now the force acting on a current carrying conductor maximum कब होगा और minimum कब होगा। तो when the conductor is placed perpendicular to the direction of the external magnetic field, यानी कि when theta is equal to 90 degree, उस केस में the force acting on a current carrying conductor will be maximum। और मिनिमम कब होगा, the force acting on a current carrying conductor will be minimum कब, when the conductor is placed parallel to the direction of the external magnetic field। parallel मतलब when theta will be 0 degree। तो पैरेलल को कैसे रखना है ये भी समझ लो। the length of the conductor should be small so that it should be placed between the gap of the poles of the horseshoe magnet। horseshoe magnet के बाहर नहीं होना चाहिए, अगर उसके पोल्स के अंदर रखा जाए, कंडक्टर को इतना छोटा कर दिया जाए कि इस दोनों के गैप में हो जाए, तो क्या हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा कंडक्टर। तो उस केस में तुम्हारा फोर्स जो लगेगा 0 लगेगा एंड देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन दैट कंडक्टर, उस समय कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट को याद रखना है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम फोर्स कब लगेगा। तो यहाँ पर तुमको थीटा आंसर जब भी एग्जाम में लिखोगे वहां थीटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा पढ़ना ही नहीं है। बस वर्ड यूज करोगे तुम लोग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है।
When the conductor is placed perpendicular to the direction of the magnetic field, it will experience maximum force, और parallel रखेंगे तो minimum force और zero force. अब मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, मैग्नीट्यूड इससे निकला F इज इक्वल टू BIL, ठीक है. अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाता है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स acting on a current carrying conductor in a magnetic field is determined by Fleming's left hand rule, और जिसको हम लोग मोटर रूल भी बोलते हैं, Fleming's left hand rule. अब ये रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि stretch your forefinger, middle finger and the thumb of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. यानी कि तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. If the forefinger points in the direction of the magnetic field, middle finger points in the direction of the current, then the thumb will indicate the direction of the motion of the conductor. यानी कि thumb का जो डायरेक्शन होगा वो दिखाएगा कंडक्टर पर फोर्स किधर लग रहा है. यानी कि thumb will indicate the direction of the motion of the conductor, the force on the conductor. इसमें ध्यान देना ये जरूरी है कि whenever you are writing the definition of Fleming's या statement of Fleming's left hand rule, thumb आना चाहिए लास्ट में. इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है. thumb होना चाहिए लास्ट में. यानी कि here you have given two things in the beginning. Can you tell me what are the two things you have given in the beginning? Can you tell me what are? and middle finger. No, ठीक है. That you are showing with the help of finger. What are the two things that you have given in the beginning due to which force is experienced? First, tell me that. Current and magnetic field. Yes. Very Current good. and magnetic field. Yes. Very good. Very good. Tell me your name, please. Abhi Aditya. Very nice. Yes. First of all, you have given current, ठीक है, and then you have given magnetic field. Because of these two only force is experienced. इसी के कारण force आ रहा है, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज नहीं देंगे force experience नहीं होगा. इसलिए when you are writing the statement, हम should be always, हम का जो statement होगा वो हमेशा last में होगा, ठीक है. Now see this figure. In this figure, conductor, this is the conductor, this rod is the conductor which is placed perpendicular to the direction of the magnetic field, ठीक है. अब जैसे ही इसको रखे, you apply the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. अब देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, ये वाला फोर फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर. इस चीज को ध्यान में रखना, याद करने का एक तरीका है. T से सेंट्रल फिंगर, C से करंट. इस चीज को ध्यान में रखना. T फॉर सेंट्रल फिंगर, C से करंट. F से फोर फिंगर, F से फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. F से फोर फिंगर, F से मैग्नेटिक फील्ड. And thumb will give you the direction of the force acting on the current carrying conductor, ठीक है. तो यहाँ पर देखोगे फोर्स इधर किधर लग रहा है. By seeing the figure, can you tell me where is the force acting? In which direction the force is acting? Upward direction. Very direction. Yes. Very good. Force is acting in the upward direction. तो तुम्हारा हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है. हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि फोर्स का जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ नहीं लोगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल. तो फोर फिंगर का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ टू साउथ रखोगे ऑलवेज, ठीक है. एंड करंट का डायरेक्शन तुम्हारा इधर है, जो एरो शो कर रहा है, तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड. यानी कि अब ये इसमें जो कंडक्टर में जो डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की ओर होगा, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, समझ में आया? एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क रिलेटेड टू दिस रूल? Yes, sir.
इसका एप्लीकेशन हम लोग मोटर में पढ़ेंगे। मोटर में मोटर जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट मोटर, तो उसमें इसका एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो। ठीक है, उस वीडियो में देखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन जल्दी जल्दी सब काम करेगा तभी हो पाएगा। स्क्रीन विजिबल है ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, देखो अब क्या होगा। अंडा होगा फ्यूज। आवाज फंस रहा। म्यूट कर। आई हैव म्यूटेड द वीडियो हियर। ठीक है, अब इसमें ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग माय वॉइस? ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग माय वॉइस? ऑल ऑफ यू, Yes, sir. ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. सब अनम्यूट कर लो अपने आप को। अब मेरा, हम पूरा वीडियो अभी नहीं दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो दिखाने से पहले माय क्वेश्चन टू यू इज, ये पूरा फिगर सेटअप देख चुके हो तुम लोग? ठीक है, अब इसमें ये बतलाना है कि डिफ्लेक्शन किधर होगा। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल मी इन विच डायरेक्शन द डिफ्लेक्शन विल बी। इस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन किधर होगा, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। हमको यही आंसर जानना है, इनवर्ड और आउटवर्ड। Outward. Inward, sir. Inward. Inward. Outward. 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 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। कहां पर अप्लाई करोगे? कंडक्टर में अप्लाई करोगे। कंडक्टर के लिए सी द पॉजिटिव टर्मिनल and see the direction of the north pole in the external। तो नॉर्थ पोल है ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो फोर फिंगर तुम्हारा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फोर फिंगर विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, एंड द सेंट्रल फिंगर तुम्हारी ओर होगा, तुम्हारे तरफ। सेंट्रल फिंगर जो होगा वो तुम्हारी ओर होगा। ठीक है, तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड? Outward. Inward. 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 देख लो फिगर, देख वीडियो देख लो।
इट वाज आउटवर्ड नॉट इनवर्ड। जो आउटवर्ड दिए हो आंसर दिए हो वेरी गुड, जो इनवर्ड दिए हो उसको और स्टडी करना है। Views.